आपको लगता नहीं है एक कर्नाटका बुलडोजर्स अगर आउटफील्ड के बाहर एक बुलडोजर भी खड़ा कर देते अगर, तो थोड़ा इंटिमिडेशन ऑपोजिशन के लिए बढ़ सकता था। पर इस वक्त बुलडोजर तो सुदीप है, उनके एक्सप्रेशंस को देखकर ही लुक्स लाइक अ बुलडोजर एंड ही साउंडिंग लाइक अ बुलडोजर. ऑलराइट, देयर गोस. We are going to who else? My favorite lady, CCL की शान पॉपी, जो उनका पेट नेम नहीं ओरिजिनल नाम है. अतुल वासन जी, I hope you're listening to this one. Well, मेरे नाम के झंडे गड़ गए हर जगह, मुझे ऐसे लग रहा है. Well, right now I'm standing with Sunil and the coach of Karnataka team. Firstly, right now Bengal has been very strong in the past 2 games. What's going on in your head? It's the semis against Bengal. Well, the fact that they've reached the finals says that they're a good team, not to be taken lightly. And the fact that we are a team that's reached 6 consecutive semi-finals says a lot about our team also. We're quietly confident. I think we should get the score. Let's ask the coach. How confident is your team right now? I think they are confident and put in the hard work. So as in all the 6 years we have done the hard work. So I think it is not a new thing playing in the semi-finals, and they know what it takes to be there. They've won. They've been in 4 finals. So 2 of them we've won. 2 times we were runners-up. I think they are on course actually. You're smiling all the way. Clearly, you know that you might just win the match. Is that the reason? Yeah, in cricket you never know. But then we have made a good start. I think if it stays on like this and we not lose that many wickets in the first 10 overs, I think we'll pull it through. There might be another reason for us smiling, but I And can't. what is that? I can't say that on TV though. Now tell me one thing. The coach in the Bengal team is actually wearing his shorts that he's been wearing for the past 3 matches because they've been winning. Past 2 matches, sorry. In Chandigarh as well, freezing temperatures. He was just wearing the same shorts. Superstition. Do you guys have something like that running in your team? I don't believe in it. It depends on how you go about your game, how strong you believe in your convictions and your game, and that's about it. We have put in the hard work. We believe in that rather than being superstitious. Who do you think are your favorite players in the team? In my team, I guess Rajiv has to be a clear favorite, but then there's Pradeep and there's Dhruva and there's J-Kid. Actually, there's everybody. There's myself too. So, today's biggest. खुद का favorite. I mean, I'm everybody's favorite, but you know. In fact, he Are pulled you- it through for us this match. He got 3 wickets, and also Tarun Chandra got 4 wickets and pulled it back at the business end of the game, business end of the innings. Actually, he got 4 wickets. I think these 2 guys did well today. So when they're like all film actors, when you coach them, are they very good players, or there's just a lot of musti going on? See, initially when it started, it was fun and frolic for them. But then I am used to being very disciplined. I actually am the professional Karnataka coach too, Karnataka A. So I think I instilled that discipline as well as captain. He is a strict disciplinarian as well as a mischievous fellow. It is a mix of both. But then the discipline part, took, it was there visible in the team right from the start of the first season. So that way they started asking me cricketing questions after the 3rd season onwards. So for me now there is little difference between a professional side and how these guys ask me about cricket these days. Do you ever get starstruck with a lot of cricketers around you? I think that way I should be very fortunate. Like I have myself played with icons of cricket like Anil Kumble, Rahul Dravid, all these guys, and I have also seen all them with close quarters. Actually, they were most of them from my same area, and Sudeep happened to be my childhood friend. For me, that is the clincher. So it was not that much of a adjustment for me. I think it was fun all the way, as well as whatever we say they used to follow in a disciplined manner. They used to come at 6 o'clock in the morning, and I think that is what you see on the ground today. They're so disciplined. One last thing that you would want to say to your fans in Kannada. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಈ ಮ್ಯಾಚನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಭರವಸೆ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇನ್ನೂ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಮ್ಯಾಚ್ಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ವಿ ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Well, thank you, and back to you guys. धन्यवाद पॉपी. 55 एक विकेट के नुकसान पर. और लेंथ तो ठीक है पर लाइन खराब है, इसलिए मुझे पहले 3 ओवर में सिर्फ 18 रन दिए थे. उसके बाद बहुत अच्छी वापसी की है ध्रुव और प्रदीप ने. एक तरह से मुझे लगता है कि ये जो स्टैंड है अब चिंतित कर रहा होगा जिशु को, क्योंकि आपने पहला विकेट भी ले लिया
रिक्वायर्ड रन रेट को ऊपर भेज दिया। तो ये एक गेम चेंजिंग टाइम है इस मैच में। अगर यहाँ पे इस 1-2 विकेट नहीं मिले इस समय तो ये मैच बहुत आसान सा होता चला जाएगा। बल्लेबाज जब सेट हो जाते हैं तो शॉर्ट स्ट्रोक प्लेयर, और ध्रुव के बेसिक्स बड़े अच्छे हैं, बड़े सालों से मैं इनको देख रहा हूँ, एक अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेल चुके हैं। पता लगता है कि एक फॉर्मल कोचिंग इन्होंने ली है, तो बेसिक्स बहुत बढ़िया हैं। और 169 रन का टारगेट दिया है कर्नाटका बुलडोजर्स ने, और बॉलर के लिए सबसे तकलीफदेह बात ये होगी कि वो एक एक्टर को बॉलिंग कर रहे हैं। वो ये पता ही नहीं लगा पाएंगे अतुल कि वो प्रेशर में हैं या नहीं, और अगर हैं भी तो इतने अच्छे एक्टर हैं कि वो उसको छुपाने में कामयाब हो पा रहे हैं। देखिए, क्रिकेट जब खेलनी है, और क्रिकेट क्या कोई भी खेल खेलना है, तो उसका प्रेशर तो हो जाए, एकदम बढ़िया एक्टर हो, बहुत बड़ा एक्टर हो, पर ये प्रेशर है कि टेक नहीं मिलने वाला। यहाँ पे एक गेंद आएगी, आउट करके चले जाएगी, उसका प्रेशर तो है। आप शॉट अच्छा ना दें तो डायरेक्टर को कहते हैं चलिए एक बार और टेक ले लेते हैं। वो क्रिकेट में कोई टेक नहीं है। और बंगाल का खेमा जो अक्सर हर एक मुकाबले में बहुत ही बबली, बहुत ही रिस्प्लेंडेंट और बहुत ही एक्सुबरेंस से भरा हुआ नजर आता है, वहां पे एक मायूसी का माहौल है, वहां पे एक टेंशन बनी हुई है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है उनके कैरेक्टर को, उनकी एक तरह से बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए। उनका जो फिक्र है वो पैल्पेबल है। उनके कोच बाउंड्री लाइन पर खड़े हुए हैं, बार बार उनको इंस्ट्रक्शंस चिल्ला रहे हैं, जैसे एक बॉक्सिंग कोच अपने प्यूजिलिस्ट को कॉर्नर में बैठ के हमेशा चिल्लाता रहता है, समझाता रहता है कि किस मूव से बचो, किस मूव से डक करो। और यहाँ पे डिफरेंस यही है कि उनकी आवाज शायद फील्डर्स तक या बॉलर तक नहीं पहुंच रही है। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं जिशु, मुझे लगता है कि ये अच्छा एक तरीका है गेम की पेस को स्लो करने का। जब एकदम से रन चले जाएं तो आप स्लो डाउन करते हैं, वो मोमेंटम जो बल्लेबाज जो दोनों को मिल जाता है उससे तोड़ना पड़ेगा, उनकी कंसंट्रेशन लेवल को नीचे लाना पड़ेगा। आप गेम में गैप्स क्रिएट करें, इरिटेट करें, जिससे कि वो फ्लो रुक जाए। और जिशु अगर जानबूझ के कर रहे हैं तो बहुत चालाक हैं, और जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, पेस नहीं दे रहे, विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर आपको रन बनाने हैं, ओ ये देखिए फॉल्स शॉट है, पर किस्मत नहीं, फोर्स किया ऐसा शॉट मारने को, और इसी के साथ 7वां ओवर समाप्त हुआ। 62 for 1 इज स्कोर। गेंदों को पहचानना है, और ऑफ कोर्स रनिंग बिटवीन द विकेट जितनी दुरुस्त होगी, जितनी अच्छी होगी, उतना ही आपका ये टारगेट अचीव करने का जो चांस है वो बढ़ जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो टोटल्स की बात करते हैं T20 में, इट्स ऑल रिलेटिव टू द कंडीशंस। अब आप ये देखें, अगर आपकी तो वो इनकैश कर सकता है, और ध्रुव इसीलिए बड़ा शॉट नहीं खेल रहे, जानते हैं कि कुछ दबाव नहीं है, ये रन आसानी से बन जाएंगे अगर और 4-5 ओवर विकेट नहीं गया तो। विकेट, ओह सीधा शॉट, ज्यादा बीच में लगा नहीं, बैट के थोड़ा नीचे रहा क्योंकि दूर था और पेस नहीं थी। अगर अच्छे किसी तेज गेंदबाज को आप शॉट मारे तो मिडिल करें तो सीधा बाहर जाएगा, पर बॉलर के सिर के ऊपर से मारना सेफेस्ट जगह मानी जाती है क्रिकेट में। बट दिस टाइम इट डिडंट हैव एनी लेग्स ऑन इट, सो इट वाज इजी फॉर द फील्डर टू स्टॉप इट. Another thing that the opposition needs to do at this point is that the Bengal Tigers have to impose themselves fielding wise. They seem a little lackluster when it comes to the aggression. वो aggression बिल्कुल गायब लग रहा है उनकी फील्डिंग से. उनकी मिस फील्ड्स भी बैट्समैन का जो कॉन्फिडेंस है, जो भरोसा है, उसको इजाफा ही दे रहे हैं. नहीं, मुझे लगता है कि I've seen them over the years and I've seen them work really hard. Fielding is the toughest bit. Batting, bowling is your skill. You can hone it individually, but fielding takes a lot of fitness and also a lot of anticipation, which unless you play a lot of cricket is not possible. I saw Mumbai Heroes lose in Chandigarh last week because of poor fielding. They scored 200, could not defend it, dropped the catches. As soon as the ball goes up, especially at night, unless you have practiced catching high catches under lights, it's virtually impossible. Even for professional cricketers, it's so difficult. Absolutely, the fielding needs to be at a professional level, but nevertheless, जिस तरीके का पैनापन गेंदबाजी में बंगाल ने दिखाया है ऑफ एंड ऑन, उसकी थोड़ी बहुत तो तारीफ करनी ही होगी. हाँ, ऐसी कुछ गलत गेंदें और खराब गेंदें भी हैं जिनका फायदा कर्नाटका बुलडोजर्स ने उठाया है, पर ऐसा नहीं है कि बंगाल के बॉलर्स ने ज्यादा रूम दिया हो. पर फिर भी बैटिंग अच्छी रही है और ये बाउंड्री की तरफ भागती हुई, पर फील्डर इसको इंटरसेप्ट कर लेगा. एक मौका था अतुल, मुझे लगा. बिल्कुल, ये हाफ चांस है, पर वही मैं कहता हूं कि अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेट में ये कैच लेना पड़ेगा. अगर आप ऐसे मौके छोड़ देंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो ये हाफ चांसेस जो हैं गेम बदल देते हैं.
और जिशु जानते थे कि ये मौका था और बड़ा विकेट होता ध्रुव का। थोड़ा कैजुअल खेल रहे हैं इस समय। 8वां ओवर चल रहा है और सिर्फ एक विकेट का ही नुकसान हुआ है कर्नाटका के लिए। बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वक्त एक विकेट का गिरना। शॉट खेला, फील्डर की तरफ जाएगा और 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 66 पर 1, 8 ओवर्स की समाप्ति। लाइक दे से पार्टनरशिप्स क्रिएट लीडरशिप। एक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ते हुए और बंगाल टाइगर्स की मुसीबतें मुझे लग रहा है बढ़ती हुई। पहले तो उनका जो टोटल था वो एक जिशु के दूसरे ओवर और ये एक मिसफील्ड पर उसका फायदा नहीं उठा पाए बैट्समैन। जिशु अभी तक 1 ओवर कर चुके हैं, उनके दूसरे ओवर की पहली गेंद गई। 8 रन्स वो लुटा चुके हैं। जिस लिहाज से ये गेम चल रही है अतुल, मुझे लगता है कि 1 ओवर में 8 रन जाना एक बॉलर के द्वारा इतना बुरा भी नहीं है। और वो भी एक चौका जो आया बहुत बढ़िया गेंद पे आया, मिस हिट था, स्लिप से गया और विकेट और आउटफील्ड इतना तेज है कि शॉर्ट थर्ड मैन के पास मौका नहीं था उसको काट सके। और मुझे लगता है कि अगर गेंदबाज को थोड़ा भरोसा रहे कि वो ऑफ स्टंप के बाहर नहीं करने वाला तो थोड़ा सा शॉर्ट थर्ड मैन अंदर की तरफ रखें, फाइन रखें। मैंने दोनों पारियों में कम से कम 3 या 4 बाउंड्रीज वहां से जाती देखी है, स्पेशली जब तेज हो पिच तो एज जब जाता है तो आपके पास मौका नहीं रहता। ओह, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, फील्डिंग जो है ये 1 रन सीधा 4 में तब्दील हो गया। बहुत ही लचर प्रदर्शन, बहुत ही लेजी और इनर्शिया से भरी फील्डिंग नाकामयाब रहे और इसी की वजह से 4 रन का इजाफा हुआ। और एक सवाल भी पूछना चाहेंगे आपसे कि हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल टाइगर्स टीम? ये तो एक बोनस मिल गया, सुना ही नहीं प्रदीप ने और दौड़ते चले आए और थ्रो भी बहुत बढ़िया आउटफील्ड में। ध्रुव देख नहीं रहे थे, तो बहुत ही अजीबोगरीब मौका और ये एक मौका दे दिया है बंगाल की टीम को वापस आने का मैच में। जी बिल्कुल, और बंगाल के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है और इसको कहेंगे तरीके से कम्युनिकेशन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और 9वें ओवर में 3 गेंदें डाली जा चुकी हैं और ध्रुव शर्मा एक सेट बैट्समैन अपनी ही गलती से, अपनी ही मिसकम्युनिकेशन की वजह से दूसरे छोर पर बल्लेबाज साफ इशारा कर रहे थे कि मत आओ मेरी तरफ और वो अपना विकेट गवा बैठे। बंगाल को जिस ब्रेक थ्रू की जरूरत थी, बंगाल को जिस मौके की तलाश थी, वो उनको मिल गया। अब हो सकता है खेमे में वो जो चेहरे मुस्कुराना भूल गए थे, उनके लबों पर हंसी फिर से लौट आए। और प्रदीप ने कहा था कि मैं टॉस अगर हार जाऊं गेम जरूर जीतूंगा। अतुल, मुझे लगता है कि अपनी टीम की स्ट्रेंथ्स को जानते हैं ज्यादा ही। मुझे लगता है कि इतने सालों से कप्तानी कर रहे हैं। ओह, बहुत बढ़िया फील्डिंग। जी देखिए, एक विकेट आपको जब मिल जाती है तो एकदम से एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, थोड़ा सा एक जोश की लहर दौड़ती है और आप एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं। आपको लगता है कि एक मौका मिल गया है, हल्का सा दरवाजा खुला है। और बंगाल के खेमे के शॉट्स में जरूर देखना चाहूंगा, दोबारा देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा कि अब माहौल में किस तरीके से तब्दीली आई और उनके कोच जो बड़े ही एक्सूबरेंस से अपने स्टूडेंट्स को, अपनी टीम को इशारों के साथ, जेस्चर्स के साथ प्रोत्साहन देते रहते हैं, वो अभी दोबारा शुरू हुआ है कि नहीं दूसरी विकेट गिरने के बाद। 1 रन ही मिलेगा। 76 for 2, 9 ओवर की समाप्ति। और बिल्कुल निश्चिंत लग रहे हैं। या तो ये एक कॉन्फिडेंट कप्तान की निशानी है या फिर एक बेहतरीन एक्टर का स्वरूप है। जबरदस्त बल्लेबाज हैं। ध्रुव को बहुत बढ़िया शुरुआत मिल चुकी है, सेट लग रहे हैं और रिक्वायर्ड रन रेट भी 8.5 से नीचे है, तो जबरदस्ती टेंशन की जरूरत भी नहीं है। आप, मुझे लगता है ये आजकल शोर इतना ज़्यादा रहता है, T20 में ऐसा माना जाता है, मैं खिलाड़ियों से बात करता हूँ कि आपको कॉल जो है कई बार सुनाई नहीं देती नहीं। इसलिए अब नया एक तरीका बनाया जा रहा है कि आप एक नज़र देखें, विजुअल कांटेक्ट दोनों बल्लेबाजों में होना बहुत ज़रूरी है कई बार, क्योंकि इतने शोर में आप यस और नो सुनाई नहीं देता आपको।
विडंबना ये है कि बल्लेबाज को सुनाई नहीं देता है और उसी का खामियाजा आज कर्नाटका को भुगतना पड़ा। बल्ला घुमा दिया, लेग साइड पे खेलना चाह रहे थे, बॉल का उछाल ज्यादा है और यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो नया बल्लेबाज आता है, अगर अभ्यास नहीं है आपको ऐसी पिचेस पे जहाँ पे जेन्युइन बाउंस है, शॉट ऑफ वुडलैंड से किस तरह से बॉल उछला देखिए। और ये दो जब आप सेट हो जाएं तो ऐसी पिच पे बैटिंग करने का बड़ा मजा आता है। और ये 2-0 के आंकड़े देख के स्क्रीन पर और ये कोशिश की थी शॉट खेलने की, पर किसी ना किसी तरह चौका लग गया और साथ में वाइड भी। तो 5 रन आते हुए कर्नाटका की टीम के लिए बॉलिंग पर काबू पाना होगा, लाइन और लेंथ पर जोर डालना होगा और ब्लॉक होल में ही कोशिश करनी होगी कि अपनी गेंदों को समेट लिया जाए ताकि बैट्समैन को रूम ना मिल सके उस गेंद का फायदा उठाने का। तो दूसरी विकेट के बाद भी इस खेमे में कुछ ज्यादा रौनक नजर नहीं आ रही है और राजीव ऑन स्ट्राइक हैं। अच्छी गेंद 1 रन के लिए और मोमेंटम टूटना ऑपोजिशन के लिए हमेशा ही खुशखबरी होती है। फैंस भी अब इस जोश का, इस एक्सूबरेंस का मजा ले रहे हैं। धीरे धीरे भरता चला जा रहा है मैदान, क्योंकि होम टीम जो है तेलुगु वॉरियर्स अगला मैच खेलेगी। हॉट फेवरेट्स हैं सेमीफाइनल में, पिछले साल के विजेता भी हैं और एक अच्छा खासा फैन बेस उनका बन चला और अपने ही गढ़ में बहुत मुश्किल रहेगा उनको हराना। जी बिल्कुल, जब मुकाबला शुरू हुआ था अतुल, तब स्टेडियम में थोड़ा जोश कम था, पर जैसे जैसे गेम आगे बढ़ी है, फैंस एकत्रित हुए हैं, सारी जो अटेंशन है। ये अच्छा शॉट खेला बाउंड्री की तरफ जाते हुए, स्क्वायर लेग, और ये एक वेलकम बाउंड्री कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए। 88 रन का आंकड़ा अचीव किया 10 ओवर में और 2 विकेट के नुकसान पर। जो भी आपने अभ्यास किया है, जो प्रैक्टिस की है, अब उसका अंजाम यही देना होगा गेंदबाजों को। एक खराब गेंद जो है हर ओवर में जरूर डाल देते हैं और ये बड़ा हिट है, इंतजार करके उठा के मारा है, बिल्कुल टाइमिंग मिलाई और बहुत ही बढ़िया जिस तरह से अपने बैट को रोक के और बॉल की पेस के साथ तालमेल बिठाया है, बड़ी जबरदस्त शॉट थी है। मैं अतुल वासन और अपने साथ कमेंट्री बॉक्स में अजय मेहरा। अजय, ये मैच तो निकलता नजर आ रहा है बंगाल के पंजे में से। शुक्रिया अतुल। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा और मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि अगर ऐसे शॉट लगते रहेंगे तो फिर कठिनाई और बढ़ेगी और ये खेमा जानता है कि बिल्कुल पटरी पे चल रहे हैं, अब ज्यादा समस्या नहीं है। बड़े शॉट के लिए जा रहे पर ये अच्छी गेंद, अच्छी फॉलो अप गेंद, इससे पहले छक्का लगा था पर बिल्कुल जड़ पे करने का प्रयास। पर जैसे आपने कहा बिल्कुल सही अतुल की इक्वेशन पूरी तरह से पक्ष में है कर्नाटका बुलडोजर्स के। 75 रन चाहिए 58 गेंदों में और बड़ी बात यह है कि 8 विकेट अभी भी उनके पास है, उनके बैंक में है। राजीव आप जिस अंदाज से खेलते हैं, आतिशी अंदाज से खेलते हैं, बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं जिशु, थोड़ा सा भाग्य साथ नहीं दे रहा। अच्छी गेंद थी जिसपे छक्का लगाया, मुझे लगता है कि अच्छी गेंद पे ही बड़ा हिट लगता है। खराब गेंद पे 6 रन मारने बहुत मुश्किल है सीधे, और इतनी दूर गया कि छक्का नहीं अट्ठा था वो। और T20 में मुझे लगता है एक वेरिएशन लानी होगी कि जितना लंबा आप शॉट मारे उतने ज्यादा रन आपको मिले। और ये टॉप एज है, क्या पकड़ा जाएगा? अरे ये तो खराब है कॉलिंग। कवर्स के फील्डर ने सोचा पीछे से खिलाड़ी आएगा, पीछे के फील्डर ने सोचा कि कवर्स वाला पकड़ेगा और दोनों ही खड़े रह गए। तो ये मौका फिर से चूक गई बंगाल टाइगर्स। जी हाँ, और कहीं ना कहीं जो कवर्स के खिलाड़ी हैं वो ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि पहले मुझे लगा ऐसा कि जो कॉल है, जो खिलाड़ी लगभग लॉन्ग ऑफ में काफी वाइड थे, वो दौड़े थे तो वो हिले ही नहीं अपनी जगह से, इसको टाइम नहीं कर पाए थे। और देखिए प्रयास किया पर गेंद आगे गिरती हुई, और जॉय जो कि कवर पे थे वो अपने स्थान से हिले नहीं। अच्छी गेंद, तेज गति गेंद, गति मिश्रण करते हुए 8 रन आ चुके हैं इस ओवर में। प्रयास कर रहे हैं जिशु बतौर कप्तान अब गेंदबाजी भी करते हुए, पर खासकर राजीव को, जो मैंने इनको पहले भी देखा है, इनको खामोश रखना बहुत कठिन है। अगर आप सीसीएल सुपर फैन है, जल्द से जल्द फोन उठाइए और कॉल करिए 5333 पे और 1 लाख की राशि आप जीत सकते हैं। बार सही तरह से बल्ले पे आई नहीं,
11 ओवर की समाप्ति 96 पे 2।